Hello students, myself Rajiv Atri, and today we will discuss electrostatics of a dielectric. So students, in previous video I explained you electrostatics of a conductor. Now in this video I explain you electrostatics of a dielectric. Means to say that electrostatics means in static electric field. That is, if we place a dielectric material into a static electric field, then the properties of that dielectric will explained in electrostatics of a dielectric. So students, first property is its polarization. Polarization means as from name, polarization means to develop poles. पोल डेवलप होने का मतलब अब यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मैं एक कैपेसिटर की हेल्प से रखा हूं यहाँ पे। दिस इज डाइलेक्ट्रिक, थोड़ा सा थिक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं ताकि आपको इसके अंदर के चार्ज जो पोलराइज हुए हैं उनके बारे में ढंग से समझ में आ सके। देखें, पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव बाय इंडक्शन डेवलप होता है एंड नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव डेवलप होता है। इन बिटवीन दीज सरफेसेस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ये अंदर से भी पोलराइज होते हैं, बट अंदर के चार्जेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर ये कह लो ये एक दूसरे से न्यूट्रल होके अंदर नेट चार्ज जीरो बना लेते हैं। सो रिजल्टेंट चार्ज ऑलवेज रेसिड ऑन सरफेस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, हाँ, बिकॉज पोलराइजेशन के कारण आई है। सो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। नाउ पोलराइजेशन जो वर्ड है, इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डाइपोल मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। डाइपोल मूवमेंट देखो, कभी भी कोई भी मटेरियल, कोई भी एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल जब भी दो पोलैरिटी शो करता है तो पक्का उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है। यहाँ पे इस एलिमेंट, इस पूरे स्लैब ने दो पोलैरिटी शो करी है। इन रिजल्टेंट स्लैब कुछ ऐसी रही होगी कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। स्लैब की थिकनेस मैंने मान ली T is the thickness of our glass slab. So dipole moment Q into T, as dipole moment क्या होती है, चार्ज into distance between them, both charge into distance between them. This is our dipole moment per unit volume. Total dipole moment induced per unit volume is called our polarization. And what is per unit volume? Per unit volume, as the slab is of shape, this is the shape of our glass slab, as it is have area and having thickness, so its whole volume is A into T. Cancel Q divided by A, as Q is polarized charge density, hence this ratio gives sigma. Sigma means surface charge density, sigma P. So students, this is our polarization. What is it? Ratio of net dipole moment to the volume, net dipole moment per unit volume. Now the definition is polarization can be defined as ratio of dipole moment
to the volume, or we can say that dipole moment per unit volume. Dipole moment per unit volume is called polarization. Or one another definition is there कि P इज इक्वल टू सिग्मा आ रहा है, मीन्स हम एक डेफिनेशन इस तरह से भी बना सकते हैं कि नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन. P is equal to sigma P. P is polarization, sigma P is our surface charge density. So students, this is polarization. Now next term that is related to electrostatics of a dielectric, next term is reduced electric field. Reduced electric field. This term I also explain in electrostatic of a conductor, but in case of conductor the electric field inside that conductor is zero, but in case of dielectric the electric field inside a dielectric does not zero, but it has some magnitude. What is the magnitude? now देखें, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद, और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग बिगर वेक्टर ई आउटसाइड माइनस ई पोलराइज्ड. दिस इज आवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड into the region of dielectric, but as it is subtracted by external electric field, so it has a magnitude less than external magnetic field. That's why it is called reduced electric field. So students, reduced electric field is what? Resultant electric field. It is the resultant electric field into the region of dielectric material. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रीजन के अंदर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. E इंटू द मीडियम इज इक्वल टू आउटसाइड माइनस ई एक्सटर्नल माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज आवर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. द नेक्स्ट टर्म विल बी dielectric constant. for a dielectric material के लिए इसका dielectric constant क्या रहा होगा? dielectric constant. dielectric constant देखिए, सिंपली मैंने फर्स्ट इसके पार्ट से समझाता आ रहा हूं कि dielectric constant होता क्या है. पहली डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द मीडियम, और हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द फ्री स्पेस. इसके बाद हम एक और डेफिनेशन बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स इन वैक्यूम क्यू नॉट ई. वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओ. मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई मीडियम. कैंसल ईच अदर. तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द मीडियम इज कॉल्ड dielectric constant. This is another definition of dielectric constant in form of electric field. So students, we can define dielectric constant as it is the ratio of electric field in vacuum to the free space. वैक्यूम और फ्री स्पेस का रेशियो, सॉरी, वैक्यूम टू द मीडियम मीन्स ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इन दिस इज, ये क्या था हमारा? ये थी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इनका दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बनेगा रेशियो ऑफ electric field in vacuum to the medium is called our dielectric constant. It is most important term when I
derive the relation for capacitance of a parallel plate capacitor having dielectric slab, the term must be used. So students, the another term is a dielectric strength. This is dielectric constant and another term is dielectric strength. So students, first of all you have to know the difference between dielectric constant and dielectric strength. Constant, dielectric constant is a term that mathematically relate to a dielectric medium, dielectric material. But dielectric strength is its property. What is the property now dielectric strength? Dielectric strength is a maximum strength up to which a dielectric remain a dielectric. But if we give a large value of electric field, then it become a conductor. So dielectric strength, it is the maximum value of electric field that below that electric field a dielectric remain dielectric, and above which it behave like a conductor. It behave like a conductor. So student, the maximum electric field is the dielectric strength of a dielectrics. So now the another term is very important term. डाइलेक्ट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो नेक्स्ट टर्म है कि इनकी ससेप्टिबिलिटी. अब ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि स्टूडेंट्स के अंदर ही कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, कोई स्टूडेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो वो उनकी अपनी अपनी ससेप्टिबिलिटी है. यहाँ पे भी इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी टू बीइंग पोलराइज्ड. और उसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, which is denoted by sign psi. It is psi x and then increase its right portion as like this. This is our psi. Now electric susceptibility is defined as, इसको भी हमें एक डेफिनेशन देनी है. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए डेफिनेशन हम पहले बनानी सीखते हैं. देखो ससेप्टिबिलिटी जैसे कि मैंने बोला आपको कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बोल लो या फिर ये बोल लो कि इसकी पोलराइज होने की कैपेबिलिटी क्या होती है, इसकी ससेप्टिबिलिटी. बट पोलराइज हुआ या नहीं हुआ, ये पोलराइज अगर ज्यादा हो गया, पोलराइज अगर कम हो गया, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? पोलराइजेशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना, ई मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड या ई रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे डिपेंड करता है? पोलराइजेशन विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. कि जो भी इलेक्ट्रिक, देखो ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अफेक्ट होगी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के अकॉर्डिंगली. सो पोलराइजेशन का साइन हटाने के बाद अब कांस्टेंट दो आते हैं. दोनों कांस्टेंट, एक तो साई, एक एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्यों लगा? देखो जब साई का फॉर्मूला में, फॉर्मूले में साई को अकेला रखता हूँ, P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होता क्या है? ये हमें एक डायमेंशनल कांस्टेंट टर्म देता है. अगर मैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नहीं लगाता तो ये ओवरऑल टर्म मेरी कांस्टेंट नहीं बनती. मींस डायमेंशन वैल्यू भी होती, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका कुछ ना कुछ. तो इसको यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज हियर यूज्ड टू मेक psi dimensionless.
साई को डायमेंशनलेस बनाने के लिए जो ये साई है, अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला इनका निकाल के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं होता तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता, बट एप्सिलॉन नॉट लगाने के बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है, m0 l0 t0 मींस डायमेंशनल कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि नेट पोलराइजेशन ऑफ any dielectric will directly depend on, पोलराइजेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना हमारी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया था, सो रिजल्टेंट डिपेंड ऑन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो नाउ एक रिलेशन निकालेंगे हम, वो रिलेशन भी हमारा बड़े काम का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारी टर्म्स मैंने एक ही वीडियो में इसलिए बनाई है बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सारी की सारी टर्म डाइलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन के मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड साई मींस ससेप्टिबिलिटी, ओके। सो व्हाट इज द रिलेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों चीजों को इंडिविजुअली स्टडी किया करें। के क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम मींस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एंड ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता है, जरूरत है, जो कि ये आई थी मेरी, ये आउटसाइड माइनस ई पोलराइज्ड। हाँ, अब इसके अंदर एक पोलराइजेशन टर्म भी इंक्लूडेड है, तो मेरे को इसके अंदर भी पोलराइजेशन टर्म इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि मेरी एक रिलेशन के लिए टर्म यहां पे आ सके। तो पोलराइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता था, सिग्मा पी, है ना। एंड यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड माइनस ई पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पोलराइज हुई है, हम एक गॉस थ्योरम करी थी हमने, गॉस थ्योरम के अंदर रिलेशन आया था सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो EP इज इक्वल टू सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि बिटवीन ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों डाइलेक्ट्रिक का जो भी मटेरियल था, इस टाइप से वो स्लैब थी, उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ के फोर्थ एप्लीकेशन का जो स्पेशल केस आया था कि इन बिटवीन द प्लेट्स, उसके कंपैरिजन से हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी बोथ सरफेस निकाल सकते हैं। एंड सिग्मा P इज व्हाट, पोलराइजेशन मींस E इज इक्वल टू आउटसाइड माइनस P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज P को हम पुट करेंगे, जब मैं यहां से P इज इक्वल टू साई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E क्रॉस मल्टीप्लाई, P की जगह पे एक बार पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड माइनस P की जगह पे पुट करेंगे साई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल ईच अदर। नाउ रह क्या गया हमारा, के निकाल, साई तो आ गया रिलेशन के अंदर, के निकालना रह गया। के क्या होता है, EO डिवाइडेड बाय मीडियम, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम की थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम की थी, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, मींस E से डिवाइड बोथ साइड किया जाए, डिवाइड बोथ साइड बाय E।
दोनों तरफ ई से जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या यहाँ पे तो 1 आएगा, ई ओ बाय ई माइनस साई, एंड व्हाट इज इट, इट इज के माइनस right hand side plus k is equal to 1 plus psi. This is the relation for k and psi. So students, this is all about dielectric. If you have any doubt in any point, then please put it on your comment section. I will re-explain your particular doubt in our next video. And if you really like the content of our video, then please subscribe and share this video. Thank you for watching.